Hi everyone, welcome to today's special podcast interview brought to you by Hi-Fi Youth Foundation. I am Sarah, your host for today, and we're celebrating Women's History Month. Today, we have two remarkable women who have made significant contributions in their respective fields. We'll be diving into insightful discussions with them shortly, but before we begin, let me introduce our esteemed guests. Firstly, we have Usha Sundar ma'am, who brings a wealth of experience as both an instructor and volunteer across various social sector organizations in India and the United States to her role as a director operations at Hi-Fi Youth Foundation. Her passion for uplifting underprivileged children, combined with her personal love for basketball, inspired her to co-found Hi-Fi. In her role, Usha ma'am oversees all the aspects of Hi-Fi's operations, including implementing life skills training with a special focus on empowering girls. Her dedication to holistic development and empowerment drives the foundation forward, making a lasting impact on the youth it serves. And joining us is a very special guest, Geeta Chauhan ma'am, the captain of Indians women wheelchair basketball team, who truly epitomizes and resilience and determination. Born into a middle class family in the vibrant city of Mumbai, her journey has been nothing short of inspirational. Despite facing polio at the age of 6, she pursued education with unwavering resolve. Denied admission into private schools, she completed her schooling from a BMC school and eventually she graduated from Nalsi Monji College of Commerce and Economics. Geeta ma'am has represented India at many national and international tournaments and has won many accolades too. Her journey is a testament to perseverance and achievement. A true testament to her versatility, she conquered tracks as a para athlete, claimed titles in wheelchair tennis, and even crossed marathon finish lines with lightning speed. Together, Usha and Geeta ma'am will be sharing experiences, insights, and stories that will undoubtedly leave us inspired and motivated. So, without any more delay, over to you, Usha ma'am. Let's delve into this enriching conversation with Geeta Chauhan ma'am. Thank you. Thank you, Sarah. Wow. You, Geeta, you are an international basketball player, a national level tennis player, and a marathon runner. It's really inspiring. Wow. I mean, I've never come across someone who has so much talent. And welcome to this podcast. And we will have a light conversation how our things have grown with you and with us at High Five. So, my first question is please share your childhood journey, how you got interested in basketball, at what age, your aspiration, how it all began, and what was your goal when you started playing basketball? फर्स्ट ऑफ द मेरी डिसेबिलिटी 5 साल की एज में मुझे हुई थी। बचपन में डिसेबिलिटी होना ना फैमिली में किसी को था ना मुझे, मतलब किसी को था नहीं, तो कुछ आइडिया नहीं था कि मेरी जर्नी या मुझे कैसे सरवाइव करना है फैमिली के साथ। फैमिली को भी आइडिया नहीं था, स्पेशली मॉम को, क्योंकि मेरे मॉम डैड पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल, तो गांव से रिलेटेड है, यूपी से। तो एक यूपी में जनरली ऐसा है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट भी नहीं मिलता है और बहुत कम एज में उनकी शादी वगैरह कर देते हैं। मैं भी उसी यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ है। मुझे 5 साल की एज में पोलियो हुआ था। पोलियो तो हो गया, लेकिन आगे कैसे मैनेज करना है आइडिया नहीं था। काफी स्ट्रगल तो स्कूल से ही शुरू हुआ। काफी प्राइवेट स्कूल वगैरह में मुझे एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे डिसेबिलिटी की वजह से, कोई भी मुझे। बट मेरे भाई वगैरह प्राइवेट स्कूल से ही उन्होंने पढ़ाई की है। फिर मेरी दीदी ने बीएमसी स्कूल में कोशिश की, पहले उन्होंने भी मना किया। फिर वापस 6 मंथ बाद प्रिंसिपल चेंज हुए, फिर से मेरी सिस्टर ने ट्राई किया। फाइनली उन्होंने मेरा एक एग्जाम लिया और मुझे फिर स्कूल में एडमिशन्स मिल गए। स्कूल में भी Yes. मैम इजी नहीं था, आसान नहीं था उस टाइम पे। अभी तो लोग अवेयरनेस करते डिसेबिलिटी को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, बट उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। डिसेबिलिटी को लेके अवेयरनेस नहीं था। इनफैक्ट स्कूल में भी ऐसा थोड़ा होता था कि मैं आम बच्चों के साथ नहीं बैठती थी, अलग सेपरेट एक टेबल पे बैठना, ना अकेले रहना, दोस्त भी नहीं होते थे। इनफैक्ट अदर पेरेंट्स, मतलब बच्चों के पेरेंट्स का थोड़ा ये लगता था कि बच्चे मेरे साथ बैठेंगे या खेलेंगे तो शायद उनको भी हो जाएगा। बहुत से थॉट्स थे। टीचर को भी आइडिया नहीं है और टीचर भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, हमें समझते शायद उनको भी नहीं था आइडिया। तो ये सब चीजें थी मैम बहुत सारी स्कूल्स में। अब चाइल्डहुड में जितना याद है उतना ही याद है। तो अच्छा। वो कैसे तैसे 10th कंप्लीट हो गया।
टेंथ तो हो गया, बट उसके आगे भी पढ़ना था, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि टेंथ होने के बाद मेरे डैड का कहना था कि आप घर पे ही रहो, घर पे रह के लाइफ तो नहीं बिल्ड सकती। तो मेरी राइट। मॉम ने थोड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे स्कूल वगैरह से निकलने के बाद मॉम का ही सपोर्ट था, तो कॉलेज में एडमिशन्स तो करा दिया उन्होंने, बट इशू ये था कि कॉलेज और क्लासेस की फीस कौन भरेगा। तो हाँ। वो भी एक इशू था, क्योंकि डैड ने मना कर दिया टोटली, तो फिर उनसे मांग नहीं सकते थे। तो तब से जॉब ढूंढने लगी। जॉब ढूंढते हाँ। ढूंढते बहुत जॉब ढूंढा, कोई डिसेबिलिटी की वजह से जॉब नहीं देना। मीडिया में एडवर्टाइजिंग वगैरह आते थे न्यूज़पेपर में, मैंने उसके थ्रू जॉब ढूंढने की कोशिश की, उसमें भी मैंने 3-4 महीने मैंने बहुत स्ट्रगल किया, कुछ भी नहीं मिला। फिर एक फ्रेंड थे, उसके किसी कजन की मोबाइल के जो सिम कार्ड होते, सिम कार्ड एजेंसी हाँ। स्टार्ट वो कर रहे थे, या तो उन्होंने मुझे बोला आप मेरे साथ ज्वाइन करो। तो अच्छा। मैंने सोचा कुछ नहीं तो वही सही, तो मैंने स्टार्ट कर लिया उनके साथ। वहां पे भी मैम स्ट्रगल था, 2 महीने की सैलरी तो नहीं मिली, बट हम्म, एक्सपीरियंस बहुत मिल गया मुझे। उस अच्छा। एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे बैंकिंग लाइन में फिर जॉब मिलना स्टार्ट हो गया, और मैं जॉब करती रही। जॉब अच्छा। करते करते मैम ऐसा था कि पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, दोनों मैनेज होते गए, और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया कि धीरे धीरे मैं रिलायंस कंपनी में मैं अच्छी पोजीशन पे जॉब पे लग गई। फिर अच्छा। ग्रेजुएशन भी हो गया, बट लाइफ में मजा नहीं आ रहा था मैम। हाँ। कोई रिस्पेक्ट नहीं, ना फैमिली वाले वैल्यू देते, ना ज्यादा दोस्त थे, हाँ। कुछ नहीं। ऑलमोस्ट लाइफ जीरो के इस पे ही थी। हम्म। एजुकेशन तो हो गया, बट आगे कैसे सरवाइव करना है, कैसे रहना है, अपने आप को कैसे संभालना है, बिकॉज एक टीनेज एज होती है ना मैम, बहुत मुश्किल होता है उसे संभालना। और राइट। उसमें राइट। अगर दोस्त ना हो तो फिर वो और ज्यादा स्ट्रगल। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद मैं एक टाइम पीरियड ऐसा है कि डिप्रेशन में आ गई थी, 5 साल बहुत अपने आप से फाइट करते करते मैं रह गई। फिर एक टाइम पीरियड ऐसा है कि मैंने 1 महीने में 3 बार सुसाइड किया। अरे बाप रे। और ओके। उस टाइम पे सुसाइड कर तो लिया, तीनों बार मुझे कुछ नहीं हुआ। थर्ड टाइम जब किया था तो मेरी दीदी सिस्टर वो मेरे पास आई, और उन्होंने बोला कि तू और एक बार ट्राई कर ले, 4 बार 5 बार जितना करना है कर ले, अभी तुझे कुछ नहीं होगा, मैं लिख के देती हूँ। उनका हाँ। कहना हाँ। ये था, तो मैंने भी एक्सेप्ट किया, हाँ शायद अब करके कुछ फायदा नहीं, कुछ हो नहीं रहा था। वो घर पे आने के बाद मेरा अंदर ही अंदर अपने आप से फाइटिंग चल रहा था बहुत सारा, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत साल लगे, मैंने बहुत साल। सो वो होने के टाइम पे मैंने एक दिन उठी और बैग लिया और निकल गई, घर छोड़ दिया मैंने। 6 साल हम्म। में घर छोड़ के रही अलग, अपने आप से फाइट किया बहुत। दोस्तों ने फिर एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि मैंने एम कॉम कंटिन्यू करने के लिए, ऐसे मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए वापस एम कॉम के लिए ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन तो कर लिया मैम, लेकिन ऐसा था कि बोलते हैं ना अपने आप को बिजी रखना है, कुछ एक ऐसे मुकाम पे लेके जाना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है, खुद से फाइट था, लोगों के सामने अपने आप को तैयार करना है, उस चीज के लिए मैं कर रही थी। बट कॉलेज उस टाइम पे मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एम कॉम के टाइम पे, तो उन्होंने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलने में हेल्प की। फिर एक फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि बॉम्बे में स्पोर्ट्स स्टार्ट हो रहा है डिसेबिलिटी को लेके। थोड़ा ऑकवर्ड था मेरे लिए, कि मैंने कभी देखा ही नहीं था ऐसे भी स्पोर्ट्स होते। और पहले तो मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं ऐसा ज्वाइन भी करूंगी तो लोग हंसेंगे मुझ पे, मजाक हाँ। उड़ाएंगे कि ऐसे ही कंडीशन खराब है, और ज्यादा खराब हो जाएगी। और यही सब, मतलब खेलने से ज्यादा मुझे लोगों का ये था, और ये भी हम्म, था मैं घर पे कैसे बताऊं। फिर भी मैं गई एक दिन, उन सबसे मिली, 2-4 लोग अलग अलग थे डिसेबिलिटी के लोग, कुछ लड़की लड़की। फिर अच्छा। कोचेस थे, उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे व्हीलचेयर पे बास्केटबॉल खेलना है। हाँ। मैं बहुत शौक थी कि खेलना कैसे है, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था, आइडिया ही नहीं, और कहाँ जाना है क्या करना है कुछ भी ये नहीं आइडिया था। कौन सा साल था? विच ईयर वाज दिस? मैम 2017, अच्छा। ओ। 17। मैंने बोला जाने तो, अपने आप को बिजी रखना है मुझे, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। खेलती रही, मजा आने लगा, एंजॉय करने लगी। तो बचपन में कैसा था ना मैम, मैं आम बच्चों के साथ बैठ खेल नहीं सकती थी, एकदम राइट। सेपरेट बैठ के बस दूसरों को देखती रही हूँ। तो वो खेलने का पैशन मेरा स्पोर्ट्स में आ गया बाहर। खेलती रही, हम्म, मजा आने लगा, डिप्रेशन से मेरा डिप्रेशन को दूर करने में मेरे स्पोर्ट्स ने एक सबसे बड़ा सपोर्ट किया। खेलने के बाद मैं खेलती रही, 2017 में पहला नेशनल खेला हैदराबाद में। एक भी मैच हम्म, जीते नहीं मैम, पर एक एक्सपीरियंस जो मिला हैदराबाद में, जो टूर्नामेंट्स हुए थे, हमारा फर्स्ट नेशनल उस टाइम पे मेरे लिए फर्स्ट था। मैं वहां हम्म, गई तो देखिए मैंने 2000 से 2200 लोग कम से कम, मतलब 2000 से 22,000 लोग इतने डिसेबल देखे थे पूरे इंडिया के, और मैंने कभी नहीं वाह। देखा था। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोग थे। थोड़ा मेरे लिए मतलब पूरा नया था सब। एक भी मैच हम जीते नहीं, बट एक मैच में मैं गिर गई, गिरने के दौरान मैं 2 मिनट के लिए ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी।
तो मैं अच्छा, जब मैंने, हाँ, मुझे कोई आया भाग के, सर जब तक रेफरी अलाउ नहीं करे तो वो कोई आके हमें डायरेक्ट उठा नहीं सकता। तो जब राइट रेफरी ने राइट। अलाउ किया तो उस बीच उन्होंने हमें मुझे उठाया। मैं 2 मिनट तक जैसे होश ही नहीं था, डर गई, मेरे हाथ पैर जैसे ऐसे बोलते हैं ना, फिंगर्स शेक हो रहे थे। फिर मैंने उस पे आने के बाद सोचा कि अगर मैं मैच के दौरान अगर ऐसा गिरती हूँ, तो ऑन ग्राउंड 5 प्लेयर ही खेलते हैं, उसमें से एक प्लेयर अगर ऐसा गिरा है तो 4 ही राइट। प्लेयर्स बचते हैं। उसमें इफेक्ट क्या होता है, गिरने के दौरान कोई मैच नहीं रोकता, सडनली वो कंटिन्यू चलता है। तो अच्छा। उसमें एक इफेक्ट होगा मेरी टीम के लिए कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर अगर नहीं है तो फिर टीम पे इफेक्ट होता है। मुझे वो करेक्ट नहीं करेक्ट। करना था। तो फिर उसके बाद आने के बाद मैंने उस पर प्रैक्टिस किया। व्हीलचेयर के साथ हम गिरते थे, उस पर उठती थी, गिरते थे उठती थी। मैंने उस डर को खत्म किया। डर को खत्म करके ऐसा हुआ कि लोग मुझे इतना देखने लगे मेरी वीडियोस को, कि ऐसा हुआ कि मुझे देख के अदर स्टेट की लड़कियां भी प्रैक्टिस करती है आज, और बहुत राइट। लोगों ने काफी प्रैक्टिस किया कि गिरते हैं और उठ के खुद भागते हैं। तो मुझे वो अच्छा लगा कि लोग अपने आप पे काम करते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि अरे इन्होंने किया मतलब कुछ उल्टा ही होगा, मुझे नहीं हाँ। करना चाहिए। उन्होंने कोशिश राइट। की, मैंने तो कोशिश किया। उस टाइम पे 2018 के उस वक्त मैं टेनिस भी खेल रही थी, 2018 में मैंने स्टार्ट भी किया था। इन तो टेनिस में कैसा इंटरेस्ट आया इमीडिएटली? बास्केटबॉल तो आप शुरू किया था। शुरू ही किया टेनिस। था मैम, एक्चुअली बॉम्बे में एक कैंप लगा था टेनिस का, व्हीलचेयर टेनिस का। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, यू वांटेड तो टू ट्राई दैट आल्सो। हाँ, उन्होंने एक्चुअली सर ने इनवाइट किया था। इनवाइट किया था तो मैं चली गई उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने बोला ट्राई करो, तो मैंने जस्ट ट्राई किया, मजा आने लगा, एंजॉय किया मैंने उसको भी। अच्छा। तो फिर उन्होंने बताया कि टीम गेम तो ठीक है, इंडिविजुअली गेम पे भी फोकस करना। तो राइट। मैंने बोला ठीक है, उन्होंने जैसे बताया मैंने उसी टाइम पे स्टार्ट किया। पहला 1 साल में 3 उनके नेशनल्स कुछ होते हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो हाँ। उसमें मैंने फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया, और उसमें एक भी मैच जीती तो नहीं थी। हाँ। 2018 में वापस से फिर एक नेशनल्स हुआ, उस टाइम पे मैं वापस गई, वहां पे खेला मैम। तो 1-2 मैचेस जीतती गई, सडनली फाइनल मैच में पहुंच गई। उस टाइम पे मेरे डैड की कंडीशन ऐसी थी कि जिस वक्त मेरा फाइनल मैच था उसी वक्त मेरे डैड एक्सपायर हो गया। तो मेरा फाइनल मैच की वजह से मेरी फैमिली ने मुझे बताया नहीं कि वो नहीं रहे, अच्छा। क्योंकि मेरा फोकस नहीं होता था फिर मैच के दौरान। तो जब करेक्ट। मैं मेडल ट्रॉफी लेके घर आई तो वो जा चुके थे, उनको आखिरी बार देख नहीं पाई। सो वो मुझे सॉरी। थोड़ा फील हुआ कि, क्योंकि उनको हमेशा मैं बोलते हैं ना नाकारा या ऐसी कुछ लगी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। करेक्ट करेक्ट। और जब उनको मेरा अचीवमेंट देखने का टाइम आया तो उन्होंने वो चले गए। उसके बाद मैम बास्केटबॉल का वापस से नेशनल हाँ। था, सेम सेकंड सितंबर के आसपास, अक्टूबर अच्छा 2018 में। तो हमने मैचेस, उसमें मैंने पूरा एफर्ट डाला था। 1 साल में जितना गेम डेवलप कर सकती हूँ, जितना मैंने देखा, जितना समझी, उस पर पूरी काम करने के बाद हमने नेशनल्स में गोल्ड मेडल जीता। अच्छा। फाइनल वाह। मैच में मैंने सबसे टॉप स्कोर किया था। और अच्छा। हम तमिलनाडु वुमेन्स के अगेंस्ट ही हमने गोल्ड हाँ। मेडल जीता था, जो 4 साल से ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो उनको हमने ओके। हराया। अच्छा। नाइस। और हाँ। तो मेरा कॉन्फिडेंट बोलते ना, वो एक भरोसा बढ़ता गया। अच्छा। 2019 में भी हमने गोल्ड मेडल जीता वापस हाँ। से उसी। और 2018 में मैंने इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुई थी। तभी हाँ। एशिया ओशन एशियंस गेम खेला मैंने 2018 में बैंकॉक में। और हम्म। फिर उसके बाद 2019 में एशिया ओशियाना चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुई थी। वहां हाँ। पे भी सारे मैच तो नहीं जीत पाए, बट कोशिश की है। और अच्छा। जितना हम टूर्नामेंट्स अटेंड करते हैं तो उतना एक्सपीरियंस मिलता है। फिर राइट। इंडिविजुअली गेम मुझे करना था, क्योंकि टेनिस को मुझे अभी रिसेंटली 2 साल पहले मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि मेरे अच्छा पास कोचेस वगैरह नहीं थे ट्रेन करने के लिए, और कोई ग्राउंड देना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि अच्छा। हमें देने से उनके ग्राउंड पे उनको लगता है कि व्हीलचेयर से खराब हो जाएगा, जबकि ऐसा अच्छा। बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट डिफरेंट एबल पीपल को देंगे तो उन्हें फ्री में देना पड़ सकता है। उनको ये अच्छा। भी एक थॉट आता है, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है हमारे मुंबई महाराष्ट्र में। आपके साथ देर आर मैम, अदर टेनिस प्लेयर्स आल्सो? आपके आपके साथ जो खेलते थे वो लोग, दे डिडंट कम नहीं टुगेदर? मैम, जब नहीं मैम, जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मैं अकेली प्लेयर ही थी मुंबई से। और अच्छा। सर ने जो कैंप अरेंज किया था वो कुछ कर्नाटका के प्लेयर्स थे। बहुत से आ, मैम, स्पोर्ट्स इतना कॉस्टली है कि हर एक प्लेयर सरवाइव नहीं कर पा रहा है। फाइट कर करके कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो यहाँ तक पहुंची हूँ। लॉकडाउन हाँ। के दौरान मेरी तबीयत बिगड़ गई, तो ऐसा हुआ कि उस वक्त मुझे थोड़ा सा कैंसर का सिम्टम्स था ओ माय सडनली गॉड। उस बीच में।
तो टाइम पे चेकअप कराया तो मुझे पता चला। मेरे फ्रेंड्स ने काफी हेल्प की लॉकडाउन के दौरान, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया। इनफैक्ट मम्मी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। लॉकडाउन में हाँ, बहुत सारी चीजें, सब टेंशन ले करेक्ट रहे थे। तो मैं है। कुछ टाइम पे फ्रेंड के पास शिफ्ट हो गई, वहां रही, वहां पे ट्रीटमेंट कराया अपना। 1 साल वहीं पे रह के ट्रीटमेंट करा के फिर जब घर पे आई तो बाल वाल नहीं थे। सबका क्वेश्चन था तो ऐसे बोल, हाँ, अभी हाँ, झूठ बोल के भी क्या बोले, तो जस्ट बोल दिया कि ऐसे ही ऐसा हुआ, हाँ। लॉकडाउन। हाँ हाँ, नहीं बता नहीं सकी क्योंकि मम्मी का मेरे ऑलरेडी शुगर बीपी सब है मैम। तो हाँ, और सीनियर सिटीजन में आप जानते हो कि उनके पास इतना ये नहीं है सैनिक का ये, तो थोड़ा सोचना पड़ता है बोलने के लिए पापा के जाने के बाद। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद मुझे एक इंडिविजुअली गेम पे फोकस करना था। तो एक राजेंद्र सर थे, उन्होंने हेल्प किया तो मैं एथलेटिक में आ गई, पैरा एथलेटिक। उसमें हाँ, मैंने रनिंग किया व्हीलचेयर रेसिंग के लिए। उस वक्त मैंने दो नेशनल कंटिन्यू 2022 में उड़ीसा में एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता। हाँ, हाँ, वो मेरा पहला नेशनल था एथलेटिक का। पुणे में मैंने फिर से गोल्ड और एक सिल्वर जीता 100 मीटर और 400 में। फिर अभी रिसेंटली 2000 दिसंबर में 23 में ही मैं खेलो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई थी। तो अच्छा, उसमें भी मैंने एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता। 2023 में ही नवंबर में हमारे बास्केटबॉल का नेशनल था, वापस से छत्तीसगढ़ में, मतलब आफ्टर लॉकडाउन ये पहला नेशनल हुआ हाँ, बास्केटबॉल का। सो हाँ, उसमें मैं महाराष्ट्र के लिए कैप्टनशिप के लिए सिलेक्ट हुई। अच्छा, और फिर उसी टाइम पे हमने महाराष्ट्र की फिर से गोल्ड मेडल जीता, नेशनल चैंपियनशिप फिर से जीता। मतलब कंटिन्यू ओके, हमने 3 साल गोल्ड मेडलिस्ट हमने जीता, महाराष्ट्र मेंस वुमेन्स बोथ टीम। वेरी अब नाइस। हाँ, उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल जनवरी में था 2024 में, उसमें मैं अच्छा, इंडिया टीम के कैप्टन के लिए सिलेक्ट हुई। और हाँ, फिर वहां पे भी एशिया ओशियन चैंपियनशिप था, उसमें हमने 3 मैच जीते, ज्यादा नहीं। बट हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा मिला। हम जब इंटरनेशनल लॉकडाउन के पहले जब जाते थे ना मैम, तो हमारा स्कोर बहुत कम होता था, ऑलमोस्ट 5-10। अभी राइट, एटलीस्ट हम 40-45 के अबाव स्कोर करते, तो हाँ, हमारा थोड़ा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। हम और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो इंडिया टीम है ना, हमारे साथ में प्रैक्टिस नहीं हो पाती 6-6 महीने के लिए, जो प्रैक्टिस होती है ना साथ में, हाँ, वो नहीं होती क्योंकि हमारे पास ग्राउंड नहीं होता है, या तो हमारे पास स्टे वगैरह का ऑप्शन नहीं है। फिर मतलब जो एक्सपेंसिव के लिए स्पॉन्सरशिप वो सब देखना पड़ता है। कोचेस हेल्प कर रहे, तो लॉन्ग पीरियड के लिए कैंप नहीं होते तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, और प्रैक्टिस नहीं होती तो फिर इंडिया टीम के लिए उतना एफर्ट नहीं डाल पाते जितना हमें डालने की जरूरत है। हाँ, अच्छा, अभी कोशिश चालू है कि हमारा एक 6 महीने का वापस से कोई कैंप हो जाए, तो हम आगे जाके जो नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट होंगे उसमें इस बार एटलीस्ट सिल्वर और ब्रॉन्ज तो जीत के आ सके। और मेरा तो मैम एक ही सपना है कि ओलंपिक पहुंचूं और अपने देश के लिए एक गोल्ड मेडल जीतूं। oh wow, you are so inspiring, Geeta. How much you have worked. Oh, almost 6-7 years you have. उसमें दो साल कोविड भी हो गया, but you have achieved a lot in these 5-6 years. So कोशिश कर inspiring. रही हूँ मैम। मेरा ना मैम एक सपना था कि मैं बचपन में फौज में जाऊँ ये वो, बट ऐसे कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, तो हाँ। आपका महाराष्ट्र हाँ टीम इज वेरी स्ट्रांग, ऐसा? आपका कितने जन है मैम, गर्ल्स वैसे में? तो बॉम्बे से ही 4 लोग हैं, पुणे से 3 लोग हैं, वो न्यू प्लेयर्स है ऑलमोस्ट। हाँ, तो हम बॉम्बे से जो 4 है, हम 4 में से 3 प्लेयर 2017 से खेल रहे, एक प्लेयर तो मुझसे भी पहले से खेल रही है, तो मतलब अलग अलग टाइम पे लोग ज्वाइंट हुए हैं। बट हम अच्छा, स्ट्रांग प्लेयर है, मैं एक मीनाक्षी, प्रेरणा, हाँ। हम एक स्ट्रांग प्लेयर है। जस्ट लाइक एनी एथलीट, आपको अपर बॉडी तो ट्रेन करना पड़ेगा ना। आई मीन यू हैव टू ट्रेन, आई मीन फिटनेस फिटनेस रेजिम तो होना चाहिए ना आपका भी। आप कैसे करते हो? ये एक्चुअली अभी धीरे धीरे कर रही हूँ मैम, स्टार्टिंग में तो कोई सपोर्ट वैसे भी नहीं था। तो क्योंकि उसके एक्सपेंसिव इतने ज्यादा है कि मुश्किल होता है, एक तो स्पेशली डाइट, सेकेंड राइट, है स्विमिंग चाहिए फिटनेस के लिए, क्योंकि हमारे लोअर करेक्ट, बॉडी का वर्कआउट मतलब कुछ भी नहीं या कर सकते, तो उसके लिए करेक्ट, स्विमिंग बेस्ट है। थर्ड, जिम जिम इतना कॉस्टली है। जिम हाँ, का अगर साल भर का देखे तो एक ट्रेनर का खर्चा लेके 30,000 पड़ जाता है, मतलब करेक्ट, मंथली तो ट्रेनर का ही 10,000 है, ईयरली का जो 20,000 आता है, तो ऑलमोस्ट ये इतना है। तो एटलीस्ट हम ट्रेनर तो हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का कंडीशन वैसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जाके कुछ भी कर सकते। तो एक या ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, एटलीस्ट 2 से 3 महीने ट्रेनर रखना पड़ता है। फिर उसके बाद मतलब इतना एक्सपेंसिव है ना, मैं धीरे धीरे ग्रोथ कर रही हूँ, ज्यादा नहीं। क्योंकि मैंने ओके, स्टार्टिंग में आपको जब ये किया ना, तो मैंने एक डम्बल्स ऐसे ले लिया मैंने 200-300 रुपए का, एक हाँ, जाके स्टॉल से, और उसी या से मैं घर पे करती थी।
फिर अच्छा, हमारे घर के बाजू में गार्डन है, गार्डन में कुछ आजकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं हाँ वर्कआउट के हाँ, थोड़े थोड़े। तो जो करेक्ट मैं करेक्ट। बैठ के कर सकती हूँ ना, 2 से 3 ऑप्शन से, तो मैं वो कोशिश करती थी। फिर मैम बस इतना ही है, अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले मैंने जिम स्टार्ट किया, एक सर ने सपोर्ट अच्छा, किया स्पॉन्सरशिप, तो मैंने ओके, जिम स्टार्ट कर लिया है रिसेंटली। अच्छा। So how do you think sports has impacted your life beyond physical aspects? And why do you think more girls, women should take up sports? Because you saw, you recently came to High Five, you saw so many girls there. You saw only a small amount of girls. We have 4,000 children in High Five. So you can imagine 60-40 हो सकता है, 60% boys 40% girls. So इतने बच्चे तो हमारे पास है, girls तो है. Why do you think more girls should engage in sports? पहले तो मैं आपको ये कहूंगी मैम, उसमें एक तो रिस्पेक्ट मिलती है बहुत, हम रिस्पेक्ट हाँ, कमाते हैं, किसी से right, छीनना नहीं पड़ता है कि कोई हमें दे, हम उम्मीद नहीं लगाते, सबसे right. इम्पोर्टेंट ये है। और सेकेंड थिंग, इसमें स्पोर्ट्स एक ऐसा है ना कि डिप्रेशन को बहुत दूर रखता है, हाँ, तो ये एक है। और मेरे हिसाब से मैम, और स्पोर्ट्स में आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है मैम, आपने जो बीएमसी स्कूल में स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है ना, बहुत बेस्ट है मैम, बहुत बेस्ट। बिकॉज मैं उसी बीएमसी स्कूल से पढ़ के आई हूँ। एक टाइम था right, फैसिलिटी भी नहीं थी, कोई पूछना नहीं कुछ नहीं, तो आज बीएमसी स्कूल में अगर बास्केटबॉल कोर्ट है, बहुत बेस्ट है। मतलब वहां पे भी ऐसे लोग होंगे मुझ जैसे जो इस right. स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकते। और मैं ये भी Correct. कहूंगी मैम, ऐसे ऐसे जो एक डिफरेंटेबल पीपल जो ऐसे स्कूल्स में हैं, उनको भी स्पोर्ट्स में लाने की कोशिश करें, तो हाँ. वो एक बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। बस एक पता नहीं, थोड़ा सा गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत होती है उनको। What do you think of the girls that you saw last weekend? आपको क्या कैसा लगता है हाई फाई में? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा हाईफाई। मैंने हाईफाई का नाम कभी सुना ही नहीं था, और जब मैं आई और उन्होंने जो सुनील जी ने मुझे इतना चीजें बताया, फिर आने के बाद मैंने घर पे गूगल किया, मैंने बोला वाओ, हर बीएमसी स्कूल में एक बास्केटबॉल कोर्ट है। मैम हाँ, हमारे पास आज बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है प्रैक्टिस के लिए, हमें कोई दे ही नहीं रहा है आज के टाइम में। हम राइट जहाँ राइट। मुंबई यूनिवर्सिटी सेंटा क्रूज में प्रैक्टिस करते थे ना, 5 साल किया वहां पे, एक लेडी थी, उन्होंने हमें एज ए सिंपैथी में हेल्प किया और हमने हाँ प्रैक्टिस स्टार्ट किया। अब उनके अगेंस्ट बहुत कुछ चीजें चल रही है, तो उन्होंने हाँ, जो जो एक्टिविटी कराई थी वो सब बंद करा दिया। इनफैक्ट उनमें अच्छा, हम ही लोग थे पैरा प्लेयर, जो व्हीलचेयर टेनिस खेल रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, मैं पैरा एथलेटिक मतलब इंडिविजुअली गेम जो व्हीलचेयर रेसिंग कर रही हूँ वो है, बास्केटबॉल डे, मतलब हमारी बहुत सारी एक्टिविटी वहां चल रही थी, वो सब बंद हो गया है। और हम 6 महीने से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोर्ट मिल जाए। I think all of India, if I'm right, Sarah, I think we have 22, we have built 22 Correct. basketball 22 courts courts. all over India. Yeah. 19 courts तो functional है और 3 court अभी this maybe by June inauguration होएगा. So 22 courts all over India in 8 states in India. Again, over 9 years now. Lot of courts got built during COVID. COVID के time हमने 3-4 court बनाया तभी. We couldn't play, right? So we had donors who helped us in building those courts. आपको बहुत अच्छा लगा होगा मोतीलाल जब भी उधर सीरियसली गया मैम, मैं तो कोर्ट है उधर। मैं फील करके मैंने आने के बाद भी हमारे कोचेस को बताया, तो हमारे कोचेस शायद जानते हैं कुछ लोगों को आपके इसमें, हाँ रमेश सर को, वो हाँ वहां पे हाँ, आए थे, उनको जानते हैं मेरे कोचेस। तो राइट, मुझे ऐसा देख के बहुत अच्छा लगा। फिर आपका मुलुंड में भी एक बास्केटबॉल कोर्ट है, मैंने वो भी हाँ। गूगल किया, वो मुझे इतना पसंद आया ना। सो आपको क्या क्या चैलेंजेस था? ये तो स्पोर्ट्स इज अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, इवन टू गेट अ स्पॉन्सरशिप और इवन टू गो अब्रॉड, इवन टू प्ले एट द नेशनल्स, इवन स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक दैट, व्हाट आर द चैलेंजेस यू मौसम, हैड एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? हाउ आपको कैसे सपोर्ट मिला? वो 2017 में जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था ना बास्केटबॉल का, तो हमारे पास ना ग्राउंड था, ना हमारे पास पैसे थे, फाइनेंशियली हम में से कोई स्ट्रांग नहीं था, हमें पास स्पोर्ट्स व्हीलचेयर भी नहीं थी। टाइम पे बॉम्बे में डिसेबिलिटी का एक रिहैब है हाजी अली में, उसके बैक साइड हाँ छोटा सा प्लेस है, बास्केटबॉल हाँ, कोर्ट ही था, बट इतना बैड कंडीशन में था कि ऑप्शन नहीं था हमारे पास। वहां से परमिशन मिल गई, हम वहीं पे खेलने लगे। तो हम हाँ। हॉस्पिटल की व्हीलचेयर को यूटिलाइज करते थे स्पोर्ट्स खेलने के लिए। कितने लोग था तभी अब हाजी अली में जब भी आप तभी खेल? मैम, तभी भी 10-12 लोग थे तभी भी, अच्छा, दस उस बारह टाइम पे। लोग ओके, हाँ, हाँ। नाइस। और हॉस्पिटल के व्हीलचेयर मैम कैसे होते हैं, वो उसके जो स्टैंड होते हैं वो इधर तक, व्हीलचेयर ऐसी होती है और ऐसा पुश करना होता है, इजी राइट, नहीं था। आज भी है, खुद से हाँ पुश करना नहीं है, मतलब
खेलने के लिए एक स्पोर्ट्स व्हीलचेयर हमारी बॉडी से, हमारे लोअर बॉडी से एक मैच होना चाहिए। हमारे पैर कैसे है, हमारे किसी का अलग है, किसी का कम है, उस हिसाब से होता है। साइज लेके, मेजर लेके उसे बनाया जाता है। मेजर लेके बनाने की कैपेसिटी तो हमारी थी नहीं। इनफैक्ट हमारे पास बेसिक व्हीलचेयर भी नहीं था मैम। थे गिरना उठना सब चलता रहता था। मजा आने लगा धीरे धीरे। है राहुल, उसके पास सेंटर, उसके पास एक्टिवा थी। तो मैं यहाँ से चली जाती थी ऑटो तक, उसकी घर तक, और फिर उसके इससे हम एक्टिवा से जाते थे। मतलब ऐसा एक दूसरे को हम सपोर्ट करते थे। किसी को कार से जाना है, किसी को, तो वो लोग शेयरिंग करते थे। ऐसा कर करके हम वहाँ उतना दूर जाते थे, और वो भी 25 किलोमीटर दूर था ना यहाँ से। अच्छा तो हमने ऐसा जैसे किया। फिर 2017 में ही दिसंबर के टाइम पे एक फाउंडेशन थी, उन्होंने हमें एज अ डोनेशन में, मतलब 5 व्हीलचेयर दे दिया उन्होंने। तो फाउंडेशन वाला व्हीलचेयर स्पोर्ट्स के लिए अलग था क्या? हॉस्पिटल का तो ऐसा रहता है, उसका अलग था हाँ, क्या वो व्हीलचेयर? यस मैम। स्पोर्ट्स व्हीलचेयर, एक बेसिक व्हीलचेयर मोटिवेशनल कंपनी करके एक है, वो भी हाँ चाइना मेड ही है। वो एक्चुअली रेडीमेड आते हैं, मतलब वो साइज लेके नहीं बनते। वो एक फिक्स साइज, एक ग्रीन साइज 14 इसका होगा। फिर ब्लैक कलर का होगा, वो होगा 1890, ऐसा होता है। वो साइज वाइज अलग अलग है मैम। अच्छा तो ओके हाँ, तो वो भी मैम, उसकी कीमत भी 45,000। तो ओके उससे भी बाय करना हमारे लिए मुश्किल था, तो उन्होंने तभी दिया। और थोड़ा दिन हम उस पे खेले। फिर उसी के बेस पे जब ये नेशनल्स खेल के हम आए, तो इंटरनेशनल के लिए, कैंप के लिए मैं सिलेक्ट हो गई, और उनके एक प्लेयर इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट नहीं हुई। तो हाँ फिर से 2 महीने बाद उन्होंने वापस भी ले लिया। ये थोड़ा मुझे समझ अच्छा में नहीं आया। मैंने एक्चुअली उनको रिक्वेस्ट किया कि मैम मुझे 1 महीना और दे दो, मेरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो मैं आने के बाद आपको रिटर्न देती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप अभी दे दो, हम बाद में देखते। इनफैक्ट ओ मेरे माय कोच ने भी उनको रेजिस्ट किया, मतलब उनको बोला कि अभी अनु का, मतलब गीता का, मुझे अनु बुलाते हैं ज्यादातर मैम सब, ओके तो सर ने भी मेरे लिए रिक्वेस्ट किया कि उसे इंटरनेशनल के लिए पहली बार सिलेक्ट हुई है। तो उन्होंने तभी भी मना किया। नीना अच्छा फाउंडेशन करके एक है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये सिर्फ स्पाइनल लोगों के लिए ही है, पोलियो वालों को हाँ हम नहीं दे सकते। जबकि हाँ, देने के टाइम पे उन्होंने खुद ही अलाउड किया था कि हमारे टीम में जितनी गर्ल्स है उनके लिए था ये। तो उसमें मैं अकेली नहीं थी, 3 लोग थे और पोलियो वाले। तो उनसे भी रिटर्न ले लिया गया। फिर जब सर ने पूछा, तो फिर हम सब ने रिटर्न कर दिया। फिर मेरे अच्छा सर ने मुझे, कोच ने मुझे बेसिक व्हीलचेयर फिर वापस उनके एक फ्रेंड के थ्रू हाँ डोनेशन में दिलाया। फिर मैं वो अच्छा काफी साल तक खेल रही थी। ओके और अगर इंटरनेशनल खेलना है तो मैम 6 लाख की व्हीलचेयर है करेक्ट आज के टाइम पे। one question I'm asking do they treat girls differently than boys? I mean boys also in wheelchair basketball, do they get treated differently और उनका भी situation almost same है क्या? सेम है मैम, बट गर्ल्स और बॉयज की टीम अलग है। और हाँ कैसा या होता है मैम, स्पाइनल कोड इंजरी होता है, पोलियो, एम्पुटी, अलग अलग या डिसेबिलिटी है बहुत इसमें। तो हम टोटल ऑन ग्राउंड जो खेलते हैं 5 प्लेयर, वो 14 पॉइंट होना चाहिए। 14 के हाँ ऊपर ज्यादा आप नहीं रख सकते रूल्स के हिसाब से। तो अभी मेरा 2.5 आता है, तो किसी का 3 आएगा, किसी का 1 आएगा, किसी का 4 आएगा। वो उनका आता है ज्यादातर जिनका एक्सीडेंट हुआ हो और पेट कट गए हो, तो वो 4 पॉइंट में हाँ आते हैं, क्योंकि उनका लोअर पैक सिर्फ कटा है, लेकिन उनका बॉडी मूवमेंट सब एक्टिव रहता है। active है, और अच्छा पोलियो में कैसा है कि लोअर बैक का में सेंसेशन है, मतलब या कोई चूटी काटी मूंगी या किसी ने काटा तो मुझे फील है, पर मैं उसे हाँ ऐसा पैर से मारना हो तो नहीं मार पाऊँ। फाइनल में मैम ये है कि उनको अगर किसी ने जानवर ने काटा या चींटी वीटी चूहे ने, तो उनको वो भी नहीं पता चलेगा। या फील नहीं होता है करेक्ट ऐसा फील बिल्कुल नहीं होता। तो ये ऐसे ऐसे है। उनको भी सेम मैम, विलचेस तो सेम ही है सबको, हम लोगों को। व्हीलचेयर सेम है, उनका सपोर्ट ज्यादा है क्या, आपका कम है क्या, ऐसा है मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मैम, सपोर्ट उतना ही रहता है जैसा बॉडी मूवमेंट हो, जैसी So there's डिसेबिलिटी no के वैसा difference. मूवमेंट होता है। हाँ। So there's no difference between men's team and women's team. नो नो मैम, नो मैम, बस उनका स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा होता है, हाँ इतना ही सिर्फ डिफरेंट है सर, या जैसे बॉयज और गर्ल्स में। और एक और बात मैम, हम जो एबल बॉडी में जिस हाइट पे बास्केटबॉल कोर्ट और जो ग्राउंड्स होते हैं ना, हम सेम हाइट पे बैठ के खेलते हैं। तो हाँ हाँ हमें हाँ जहाँ 100% नॉर्मल लोगों को लगता है, हमें 200% देना पड़ता है। हमारा अच्छा अपर बॉडी, हमारा शोल्डर, और हाँ क्या होता है अगर व्हीलचेयर मैंने एक दूसरे को क्लैश किया तो फाउल होता है। हाँ फिर हमें उसे कट करके निकलना है, सेम हाइट पे कंट्रोल करना है, और बॉल को हम पैर लेग पे नहीं रख सकते कंटिन्यू, ओके वायलेशन हो जाए।
मतलब टू पुश ही अलाउ है, लेकिन अगर मैं बॉल को लेग पे रखती हूँ तो कोई भी टैप करके चला जाएगा। तो मुझे हाँ, ट्रिपलिंग करते हुए भी व्हीलचेयर चलाना है, पुश भी करना है, कंट्रोल भी correct. लेना है, कट भी मारना है, जाके शॉट भी लेना है। So you have to do मैम, some 10 things at the same time. Yes, yes. आई वुड यस। लाइक टू आस्क वन थिंग। मैम, आपने बोला व्हीलचेयर जो होते हैं उनका कॉस्ट क्या होता है? बेसिक व्हीलचेयर का 45,000, और अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है तो उसके लिए 6 लाख की व्हीलचेयर होती है। Wow, वो wow. बहुत ये कॉस्टली है। आप सिर्फ और स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं करेक्ट? स्पोर्ट्स व्हीलचेयर, ओके वो ओके। भी मैम जो इंटरनेशनल यूके से होता है, इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है, कस्टमाइज होता है। हमारे वो साइज लेते हैं, हमारे पैर कैसे पतले छोटे बड़े, हाँ, हमारे हाँ. पैर के फोल्डेबल घुटने की तरफ, वो सब चेक करके फिर वो एक मेजर लेके वो एक व्हीलचेयर बनाते हैं। डिजाइन अच्छा, होता है पर्टिकुलर, उसको अच्छा. कस्टमाइज करके वो हम अच्छे से खेल पाते हैं। So my next question is playing in India versus playing abroad. Difference क्या है? One is wheelchair. You said maybe they have better wheelchair. I don't know. था आपने थाईलैंड में जाके खेल के आया. Thailand is also not that. It's not like America or UK or anything like that. Thailand is also pretty similar to India. So उनका situation और आपका situation में कुछ फर्क था क्या? Any difference? मैम सिचुएशन ये है कि उनके पास ग्राउंड है, हमारे पास ग्राउंड नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका उनका सब सब उनको, अ, हाँ हाँ, अभी अदर स्टेट में कैसा हो रहा है ना मैम, उनको एक फिक्स पैकेज मिल रहा है खेलने का, हमें कुछ हाँ, नहीं मिल रहा है। हमें एक तो खुद मेहनत भी कर रहे हैं इंडिविजुअली इनकम के लिए, और अगर क्योंकि एक कैंप में हम जाते हैं एक टूर्नामेंट के लिए, सिर्फ नेशनल की बात करें तो हमारा 30 to 40,000 का खर्चा है। हम हाँ. ट्रेन से नहीं जा सकते, ट्रेन से अगर जाते हैं नॉर्मल व्हीलचेयर या स्पोर्ट्स व्हीलचेयर ट्रेन के करेक्ट. डब्बों में नहीं जाती। ट्रेन और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस इतना होता है, किसी और को लेके जाएंगे तो उसका एक्सपेंसिव का खर्चा, इससे अच्छा हम करेक्ट. फ्लाइट से जाए। फ्लाइट से जाएंगे तो एयरपोर्ट पे सारी सपोर्ट मिल जाएगा हमें, इनफैक्ट उनका काम होता है वो हमें गाड़ी के मतलब एयरपोर्ट से उतरने के बाद कार तक वो बिठा के जाते हैं, वो एक इजी पड़ता है हमें मोस्टली। कभी कभी एसोसिएशन के पास अगर हमारी इंडिया फेडरेशन के पास पैसे नहीं रहे तो फिर हाँ, हमें रहने का अरेंजमेंट करना है, होटल होटल करेक्ट. रहना है तो मैम अगर मैं एक नॉर्मल गेस्ट हाउस नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि करेक्ट. एक्सेसिबिलिटी तो वहाँ होगी ही नहीं, क्योंकि स्टेप्स होंगे, हाँ, मोस्टली स्टेप्स होते हैं करेक्ट. सस्ते लॉजेस वगैरह में। और अगर मुझे अच्छे लॉज देखने पड़े जहाँ पे रैंप हो, जहाँ हाँ, फैसिलिटी हो, जो इम्पोर्टेंट है हमारा वॉशरूम में व्हीलचेयर जाना, हाँ, व्हीलचेयर करेक्ट. नहीं जाएगी तो हम पूरा टाइम तो बाहर ही रहेंगे, तो बाथरूम यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो एक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल है हमारी लाइफ का। तो अच्छा. हमें एक्सपेंसिव होटल देखना पड़ता है जिससे पर डे का एटलीस्ट 1,000 से 2,000 का हो। तो हाँ, उस हिसाब से मतलब ये सब खर्चा लेके मैं ऑलमोस्ट 30,000 to 40,000 जाता है। तो कोई अच्छा. कोई सपोर्ट करते हैं, मैं ट्राई करती रहती हूँ कभी टूर्नामेंट्स के लिए, तो कुछ लोगों से हेल्प मिलता है, ऐसा परमानेंट सपोर्ट कहीं से अभी तक फिक्स नहीं है। एक अच्छा. कंपनी थी 2019 में, वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, 6 महीना उन्होंने किया, हर महीने का एक पैकेज आता था उनका। तो अच्छा. वो कैसा है कि एक कंपनियां होती है जो सीएसआर फंड के थ्रू प्लेयर्स को अडॉप्ट करती है और उनका करेक्ट. एक्सपेंसिव बेयर करती है, वो हम अपना इजीली सब कर सकते हैं। पर वो छह अच्छा. महीने में मैम ऐसा हुआ उसके बाद कि लॉकडाउन लग गया, फिर उनका कंडीशन था नहीं। तो मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि अभी कोई आप सपोर्ट के लिए इंटरना मिल जाए। अभी अभी इंटरनेशनल गया था, फिर गवर्नमेंट would have taken care of your expenses ना when you went for international tournament? नहीं. नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे कोचेस ने काफी फंड्स अरेंज किए, उन्होंने ही इंटरनेशनल, इनफैक्ट मैं एक और चीज बताऊंगी, इंटरनेशनल जाने के टाइम पे उसके ठीक हाँ, एक महीना पहले हमारा नेशनल्स हुआ था, तो उसके लिए फंड अरेंज करना मुश्किल था। वो हमने कैसे कैसे नेशनल सर ने किए। फिर उसके बाद हमारे इंटरनेशनल में था, और इंटरनेशनल के लिए भरना था मेंस वुमेन्स के लिए 40 lakhs। अच्छा. तो पॉसिबल ही नहीं था। तो सर हाँ, ने उसका कुछ रजिस्ट्रेशन फीस एयर टिकट्स वगैरह सब लेके 40 लाख कुछ था। तो फिर हाँ, हमने, सर ने मेल डाल दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, फंड नहीं है। तो हाँ, उन्होंने वापस मेल किया कि आप 50% करो। हाँ. अच्छा. फिर भी मैम 20 lakhs इजी 20 लाख. नहीं है। और उसी टाइम पे हमारा नेशनल नहीं होता तो फिर हम मैनेज कर सकते थे सर। तो तभी करेक्ट. भी फिर सर ने वापस मेल डाला कि एक्चुअली ऐसा है कि हमारे पास फंड है ही नहीं, अभी हमारा रिसेंटली नेशनल हुआ है, आफ्टर लॉकडाउन के बाद पहला नेशनल हुआ है, 11 लाख कर दिया। तो सर ने अच्छा. बोला कि हम आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेंस हाँ, वुमेन्स का भी तो एयर टिकट देखना है। तो उन्होंने हाँ, बोला आप एक काम करो, मतलब उनके तरफ से मेल आया इंटरनेशनल फेडरेशन की कि आप हाँ. खाली वुमेन्स टीम को भेजो, फ्लाइट टिकट ओ, का पैसा हम दे रहे हैं। तो वाह. उन्होंने हमारा इस बार का इंटरनेशनल का ट्रैवलिंग, हमारा स्टे सब, मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ने
किया हमें, हाँ. और हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए इस बार गए थे। What all countries have you gone till now? Right? थाईलैंड मैम, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, जापान। ऑलमोस्ट Wow. गर्ल्स की 9 टीम थी, बॉयज की तो बहुत सारी टीम थी मैम। And which was the best among all these experience बेस्ट wise? तो मजा आता है, उनसे सीखने कुछ मिले। यूएस में व्हीलचेयर बास्केटबॉल की एनबीए का है, मैं कोशिश कर रही हाँ. हूँ किसी के रेफरेंस के थ्रू मैं वहां जाके सीख सकूं कि उनकी हाँ. कोचिंग और हमारी कोचिंग में बहुत फर्क है। बट मुझे सीखने मिले तो मैं खुशी खुशी जाऊँ और वहां जाके सीखूं। लॉकडाउन के पहले एक बार कैंप होने वाला था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि ऐसा कैंप होगा, शायद हम आपको सिलेक्ट करेंगे। पर उसके बाद हाँ. तो लॉकडाउन में सब कुछ खत्म हो गया। मैं बस जाके सीखना चाहती हूँ उनसे, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ सीखने मिलेगी। तो हाँ. कोशिश है, मेरा गेम बहुत इम्प्रूवमेंट है। बट हाँ. मैं बास्केटबॉल के लिए बहुत क्रेजी भी हूँ। मुझे आप पूरा अच्छा. दिन बिठा दो, मैं खेलती रहती हूँ। ऐसा है। अच्छा. So आपका वर्क भी, you are also working, right? I mean on the. यस मैम, मैं अभी तो फिलहाल मेरा 4 महीना मैंने टूर्नामेंट्स कंटिन्यू बैक टू बैक थे, तो कुछ भी इनकम नहीं हुई है। थोड़ा बहुत मैं हाँ. गारमेंट्स का बिजनेस कर रही हूँ, बट अभी उतना अच्छा. ग्रोथ पे नहीं हूँ। लॉकडाउन में अच्छा. वो भी मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो अभी मैंने अच्छा. वापस Okay. स्टार्ट किया था। बट बीच बीच अच्छा. में ऐसे टूर्नामेंट होते हैं ना मैम, तो थोड़ा मुश्किल होता है करना। चलो होता और है. हाँ, अच्छा. तो स्पॉन्सरशिप थोड़ा बहुत तो हेल्प लेना ही पड़ता है। अभी अच्छा. मुझे पैरा एथलेटिक, मतलब जो रेस व्हीलचेयर रेसिंग भी कर रही हूँ, उसके लिए ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स अगर जाना है, मैं आगे परफॉर्म कर सकती हूँ, इंडिया के लिए मेडल ला सकती हूँ। बट मेरा एक इश्यूज आ रहे हैं, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो एक क्लासिफिकेशन कार्ड होता है, उसको बनाना होगा। वो भी 2 से 3 लाख का एक्सपेंसिव है। और मुझे अगर इंटरनेशनल में अच्छा चाहिए, मतलब परफॉर्म करना ही है, तो मुझे बेस्ट व्हीलचेयर चाहिए, वो भी राइट. कस्टमाइज, वो भी 6 से 7 लाख की है ऑलमोस्ट, रेसिंग व्हीलचेयर। तो वो मेरे हाँ. पास अभी नहीं है। मेरे पास सिर्फ बास्केटबॉल की व्हीलचेयर्स है, जो मजगांव डॉग नेवी कंपनी है बॉम्बे की। हमारे कोच ने उनके रेफरेंस से मुझे दिलाया था, अच्छा. तो मैं उस पे खेल रही हूँ। जब भी टूर्नामेंट के पहले ही प्रैक्टिस ज्यादा होता है कि रोज का रोज आप प्रैक्टिस करते हो? मैम, हफ्ते में मैं 3 दिन जाके एटलीस्ट 3 से 4 दिन बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करती हूँ। 2 दिन तो अच्छा. टीम आती है सैटरडे संडे, क्योंकि कुछ लोग वर्किंग पे भी है तो छुट्टी नहीं होती। और हमारे पास अच्छा. ग्राउंड अलाउ नहीं है ना हमें। पहले जो इतने साल में हम खेल रहे थे, तो उस दिन सिर्फ हमें सैटरडे संडे अलाउ किया है परमिशन, तो हम अल्टरनेट सब टीम नहीं आ सकती है। तो मैंने अच्छा. मैम से परमिशन लेके स्पेशली शूटिंग के लिए, इसके उसके लिए हाँ. ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम पे 2 PM के टाइम पे जाती हूँ, तब कोई नहीं रहता था तो करती थी थोड़ा प्रैक्टिस। बट अच्छा. अभी ऑलमोस्ट अक्टूबर से हमारा प्रैक्टिस बंद है, हमें कोर्ट वो दे नहीं रहे हैं, जबकि वो गवर्नमेंट का है। हमने काफी रिक्वेस्ट किया, मेल डाला, बैक टू बैक कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, बट अभी तक अच्छा. कुछ हुआ नहीं। हमें अच्छा. फ्री में देना पड़ता है ना मैम, इसलिए। कोर्ट मिलता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिफोर द टूर्नामेंट, द इंटरनेशनल एंड नेशनल टूर्नामेंट, आप इसमें जाते हो क्या, कलीना में जाके यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करते हो? नहीं मैम, एक्चुअली कैसा था, इंटरनेशनल है तो हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं फिर उस टाइम पे, और भी ज्यादा। फिर हमारा कैंप वगैरह अरेंज होता है, मतलब अलग अलग इंडिया टीम कैसी है मैम, अलग अलग स्टेट के प्लेयर्स है, तो करेक्ट. उनके साथ बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज इश्यूज बहुत होते हैं, मोस्टली साउथ वालों को तो बिल्कुल नहीं होता है, तो उनका मतलब आता है. हिंदी नहीं करेक्ट. आता है मैम, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है हमारा। बॉल इधर दो तो वो उधर देते हैं, वो बहुत गड़बड़ होता है हमारा। और वो बॉन्डिंग बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन हर साल चेंज होते हैं ना प्लेयर, तो उसमें भी एक इश्यूज आते हैं। इंटरनेशनल में आपको किधर तो एक जगह तो प्रैक्टिस करने में जाना पड़ेगा ना, इधर यस दे मैम, हैव वो टू कम कोचेस, हियर। हाँ. हाँ वो अरेंज करते हैं। लास्ट टाइम दिल्ली में हुआ था, लेकिन उस टाइम पे हमें सिर्फ 10 दिन ही मिला, क्योंकि हम अच्छा. उससे पहले मेरा, हम जो कुछ प्लेयर्स है ना, सबका खेलो इंडिया में सिलेक्ट हुए थे। पैरा का हाँ. पहला खेलो इंडिया हुआ इंडिया में, तो हाँ. उसमें सिलेक्ट हुए थे। वहां जाना जरूरी था, इसकी वजह से कैंप का पीरियड सिर्फ 10 दिन का रहा। और अच्छा. हमारे पास टाइम भी नहीं था कि 1 महीना 2 महीने का कैंप हो सके, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही चल रहा था कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है। और जो इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ जो हमारा प्रोसेस चल रहा था टिकट वगैरह का, वो फाइनल होने के बाद ही बाकी चीजें अरेंज होगी ना, ऐसा था। So a lot of challenges, roadblocks for you guys. Yeah. Looking forward, what improvement do you wish to see in women in sports, and how do you want to contribute? आपका सोच क्या है अभी? Looking forward, how do you want to do that? मुझे तो लगता है मैम, हर एक वुमन को कुछ ना कुछ करना चाहिए जो उसे पसंद है। घर तो संभालना ही है, और मेरे Mhm. ख्याल से वुमन जितना बखूबी घर और बिजनेस या काम संभालती है, कोई नहीं संभाल पाएगा इतना।
मैं भी राइट। अपना काम भी देखती हूँ, स्पोर्ट्स भी देखती हूँ, फिर घर पे मम्मी को भी टाइम देना है। मतलब मेरी एक्टिविटी इतनी ज्यादा है, मैं फिर भी टाइम निकालती हूँ। थोड़ा मेरे भाई के बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा स्पेंड करती हूँ, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ मूवी चली जाती हूँ। तो वो राइट। अपने को मैनेज करना है, और हम जितना हैप्पी रहेंगे ना, हम दूसरों के लिए ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, दूसरों के लिए ज्यादा सोचेंगे, और उनको ज्यादा आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। सो योर बेस्ट मोमेंट इन बास्केटबॉल? प्रैक्टिकली को तो 2018 का जो मेरा बास्केटबॉल का मैच था, फाइनल मैच तमिलनाडु के अगेंस्ट, उस टाइम पे किसी को नहीं लग रहा था हम जीतेंगे महाराष्ट्र वुमेन्स। 3 क्वार्टर तक मैम हम बहुत पीछे थे, सबको पता अच्छा। था हम हारने वाले। हाँ। मैंने गिव अप नहीं किया। मेरे बहुत शूटिंग मिस हुए क्योंकि प्रैक्टिस हाँ। वैसी हुई नहीं थी। अच्छा। 1 साल में मेरा गेम जितना डेवलप्ड हो सकता था मैंने किया उस टाइम पे। बट मैंने अपना बेस्ट दिया, और हमने उस बार गोल्ड मेडल जीता, तो वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट रहा हमेशा से। ओके। ओके, वाज इट अ क्लोज मैच? क्लोज मैच था, पता है फाइनल पॉइंट? मैच था मैं तमिलनाडु। सॉरी। पॉइंट ऑलमोस्ट मैम 30 था ऑलमोस्ट। अच्छा। और उनका, तमिलनाडु का? उनका मैम 22 ही था। सो तो इट वाज ज्यादा नॉट वेरी क्लोज नहीं था। क्लोज। यस, देयर वाज अ लीड। देयर वाज अ लीड, हम हाँ। पीछे थे, उनका लीडिंग 18 था, तो हम ऑलमोस्ट 8 पे थे तभी। हाँ। ओके। देन यू केम आउट, केम बैक। ओके। हाँ, ओके। मैंने बहुत मिस मिस किया एक्चुअली। अगर मैंने वो मिसिंग नहीं किया होता शूटिंग, हाँ। तो मेरा ऑलमोस्ट शायद मेरे अकेले का ही 22 से 25 स्कोर मेरे अकेले का होता था। तो आपने जैसे बोला कि आपकी एक नीस है, आपकी भाई की बेटी, आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो एंड उनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए आप उनको कैसे मोटिवेशन देते हो? एक्चुअली मेरे एक टाइम पे एक मीडिया आए थे, मतलब बीबीसी न्यूज वाले, यहाँ पे मेरा स्टोरी को कवर करने के लिए, तो घर पे शूट के लिए आए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे भाई की बच्ची को पूछा था, दीपशिका नाम है, उसको पूछा था कि बेटा आपको क्या करना है, आपको पापा क्या करते हैं, आपको पापा जैसा बनना है क्या? तो उसने एक ही आंसर दिया, नहीं मुझे बुआ की तरह बनना है, और मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहूंगी। अच्छा। और वो आज वेरी बास्केटबॉल नाइस। खेल रही है लास्ट फिर भी 6 है, मंथ से। कौन सी स्कूल में है वो? मैम वो गर्ल्स स्कूल में है। डिवाइन लाइन चैट करके स्कूल है यहाँ पे बॉम्बे में, वहां पे अच्छा। पढ़ रही है, और डिवाइन वहीं चाइल्ड पे हाई स्कूल, यस। बास्केटबॉल पे, हाँ। यस वहाँ पे। ओके, इट्स इन अंधेरी? इज इट इन अंधेरी, यस मैम, Sarah? अंधेरी अंधेरी। And do you like watching NBA games? Which team do you अच्छा, like and which बहुत player do you like? मैम, यूएसए। US, I know फ्यूचर USA, बास्केटबॉल। but NBA में बहुत सारा टीम्स होता है ना, उसमें कौन सी टीम अच्छा पर्टिकुलर लगता है? क्लब होगी तो मैम इतना पता नहीं है मुझे। बट जो अच्छा। इंटरनेशनल के टाइम पे आती है तो हम उन्हीं ज्यादा हाँ। फॉलो कर पाते हैं, वो देख पाते हैं ना फेस टू फेस, राइट। तो हमें उतना ही पता चलता है। हाई फाई बच्चे से पूछेंगे ना, बहुत सारे बच्चे, सो दे विल से वी लाइक वॉरियर्स, वी लाइक लेकर्स, वी लाइक दिस वन करेक्ट। दैट, ऐसा ही वो लोग बहुत सारे। अभी उनको बहुत पता है बिकॉज दे हैव बीन टॉट, आई मीन दे बीन ट्रेनिंग बास्केटबॉल। वो लोग को ऐसा कभी कोचेस भी एनकरेज करते हैं, जाके ये गेम देखो, अभी वो लोग फाइनल्स में आ गया, ये गेम देखो। सो दैट इज हाउ दे ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज एनबीए। सो अभी सबको एनबीए प्लेयर बनना है, वही सबका। हाँ। पर्टिकुलरली लाइक करी और लेब्रॉन जेम्स। तो क्या करिए, और लग रहा है इसमें फाइट भी होता है सबका। हाँ हाँ, पता है मुझे। हमारे कोचेस पहले बॉम्बे में एमबीए के स्टूडेंट्स वगैरह को ट्रेन करते थे, पहले वो एबल बॉडी के कोचेस थे। फिर हाँ। हमारे पैरा में आने के बाद अब वो हमारे ही कोचेस हो गए परमानेंट। बट अच्छा। बहुत अच्छे हैं वो, नेवी हाँ। रिटायर ऑफिसर्स है। हाँ। उन्होंने हमारा हाथ तब थामा था जब हमारे पास कुछ नहीं था। आज तक कोई भी प्लेयर को कुछ इमरजेंसी है तो वो अपने पॉकेट से निकाल के देते, हेल्प अच्छा। करते। मेरे ट्रीटमेंट के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, उन्होंने मुझे कुछ अमाउंट दिया ताकि मैं अपना ट्रीटमेंट, मैंने उनको भी बताया नहीं था, बट उनको डाउट हो गया था मेरा बाल नहीं है देख के, तो हाँ। उन्होंने हाँ। 10 बार पूछा, फिर एक बार उन्होंने मुझे भी फाइनेंशियली हेल्प किया। वो हमेशा कुछ भी तकलीफ रहती तो वो खड़े रहते। मैं कोशिश करती हूँ मैम, मैंने जब 2017 में स्टार्ट किया था कुछ नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं। तो अभी जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, मैं उनको कोशिश कर रही हूँ, उनको सही गाइडेंस कर रही हूँ कि वो आगे बढ़े, अपने एक अच्छा मुकाम करे, अपनी बोलते हैं ना सोसाइटी में अपनी एक जगह बनाए। और इम्पोर्टेंट है पहले से खुद पे डिपेंडिंग हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैम करने के लिए उनके लिए। और जिधर व्हील चेयर बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, आपको आप जाके कभी उनसे बात किया या एनकरेज करते हैं कि देखो मैंने यस किया मैम। आप? अच्छा, बहुत करते होंगे आप मैम तो, बहुत मैं बताते स्कूल्स होंगे। कॉलेज में बहुत जाती हूँ, और अच्छा।
पूना में एक इंदिरा इंस्टीट्यूट है MBA स्टूडेंट्स की। we know Indra. Yeah, we have gone there for one of our state championship. हाँ, उधर गए थे हम. हाँ, तो हम हर साल मैं वहां पे जाती हूँ जून जुलाई के बीच में। एक हफ्ता का अच्छा. तो उनका ही सेशन रहता है, सुबह मॉर्निंग के 200 बच्चों का 2 सेशन पर हाँ. डे रहता है। वो मुझे आने जाने का स्टे खर्चा एक्सपेंसिव सब देते हैं, बहुत अच्छे हैं। पर वहां पे जब हाँ. मैं बच्चों को जाके अपनी लाइफ जर्नी शेयर करती हूँ ना, तो मैम हाँ. लिटरली बच्चे आके हमें एक लड़की आई और जैसे मेरा सेशन खत्म है उसने मुझे सीधा हक किया और रोने लगी। वो इतना हाँ. डिप्रेशन में, आज टीनेज एज इतना डिप्रेशन में है ना मैम, मुझे नहीं हाँ. लगता कहीं कोई और है। करेक्ट. हमने तो करेक्ट. फाइट कर लिया, पर अभी के लोग फाइट करने के लिए भी डरते हैं जहां तक मेरे करते नॉलेज हैं. में है। राइट. हाँ, राइट. तो मैं जितना बच्चों से मिलती हूँ, जितना बात होता है, जितना शेयर होते हैं, उन क्वेश्चंस करते हैं, तो उनको समझ हाँ. में आता है लोग कितने अकेले हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ अलग अलग स्टेट में जाके कि लोगों को मोटिवेट कर सकूं। तो अच्छा. मैं एज ए फ्री अब टाइम पे मैं टोटली करती हूँ मैम ये सब भी। so we'll ask Sarah to and have a session with our girls कभी. I mean हमारा गर्ल्स तो बहुत जगह में है. एटलीस्ट वो एक हाँ, स्कूल लेके हम लोग एक कर सकते हैं आपके साथ. So they can जरूर also जरूर मैम। Sarah, we'll Definitely. do something We'll with. arrange something. Yes. Yeah. Yeah. And who are your women role models? I mean, in sports, who's your inspiration? अब I mean, it need not be सच कहूँ basketball. मैम, नहीं मैं हाँ. बास्केटबॉल की नहीं, मैं पर्टिकुलर आपको बोलूँ तो किसी को नहीं। बिकॉज मैंने ऐसा पर्टिकुलर किसी को फॉलो किया हो या इंस्पिरेशन समझा हो, नहीं। मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद ऐसा बनना है कि लोग, मतलब ना, मुझे किसी को देख के आपको. इंस्पायर नहीं होना है, मुझे खुद एक हाँ. इंस्पिरेशन बनना है। तो मैं Right. उस पे काम करती हूँ। हाँ, मैं लोगों की गलतियों को थोड़ा नोट करती हूँ कि मैं वो गलती ना दोहराऊं, मुझसे वो मिस्टेक ना हो। मैं उस हिसाब Right. से काम करती हूँ मैम। दुनिया में तो लाखों लोग हर किसी को फॉलो करते, कोई हमें Correct. फॉलो करे तो समझ में आए ना। Oh, very good. Very good. It's a very nice thing to think. Yeah. Yeah. You will be an inspiration to many of our girls, Geeta. Whatever you have gone through, at least many of them can say, oh, when this man can do this much, I can do much more. You will be an inspiration यस to me. मैम। So what encouraging words you can give it to Hi-Fi girls during this Women's History Month? Yeah, बच्चों yeah. का कैसा है मैम, उनके बच्चों के थॉट के हिसाब से उनको एक गाइडेंस देना पड़ता है, क्योंकि अभी तो वो छोटे हैं, जितने भी बच्चों को मैं देख के आई, तो उनको उतना ही एक इम्पोर्टेंट ये है कि मैम उनके सामने हमारा एक एक मैच हो जाएगा ना, तो वो ज्यादा इंस्पायर होंगे। Acha. क्यों? We'll क्योंकि do बच्चे, that. हाँ, बिकॉज अगर बच्चों को मैंने जितना नोट किया है ना, ऑलमोस्ट 7-8 साल के, ये Correct. सिर्फ सुनते हैं और फील नहीं, उनको इससे यहाँ से सुनते यहाँ से निकाल देंगे, उनको इतना नहीं Correct. समझेगा। बट वो Correct. एक्चुअली में जब वो देखेंगे ना कि व्हील चेयर पे खेल रहे, कैसे खेल रहे, तो वो एक हाँ. अलग माहौल होता है ना, तो वो We'll एक do माइंड that. अलग हो जाता है। Yeah. ऐसा। मोतीलाल नगर गया था, आपको वो सब सही था? जाने के आने का सब सही था? यस रैंप मैम, वगैरह? सब था मैम, रैंप नहीं था, मतलब रैंप लगाया गया था। बट हाँ, बास्केटबॉल रैंप कोर्ट लगाया. में मैम हो सके तो रैंप हर जगह पे लगाइए। और क्यों हाँ. मुझे पता नहीं है, पर BMC में अभी भी बच्चे हैं कि नहीं हम जैसे, बट अगर है हाँ. तो उनको भी स्पोर्ट्स में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में अच्छा. वो जितना आएंगे ना, वो उतना ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और खुद पर डिपेंडिंग होने के लिए ये बेस्ट स्पोर्ट्स है। बेस्ट. सो आई वो आपको क्वेश्चन क्यों पूछा गया था ना कि आप हाईफाई की गर्ल्स को क्या वर्ड्स बोलना चाहोगे, बिकॉज मैम बहुत टाइम ये होता है कि बॉयज को ना बहुत मोटिवेशन मिलता है घर से कि आप जाओ आप खेलो, लेकिन हेलो. गर्ल्स को करेक्ट. ना आप जल्दी आओ, आपको आपको कपड़े धोने हैं, आपको बर्तन धोने हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे राइट. बच्चों को जिनको खेलना है, लेकिन वो उनके पेरेंट्स उनके फैमिली उनको मना करते हैं या बोलते हैं आप जल्दी खेल के आ जाओ, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? जो BMC स्कूल में बच्चे हैं ना, एक तो वो अच्छे कंडीशन से नहीं होते, जितने कम राइट. होंगे उतना ज्यादा उन पर प्रेशर भी होता है जनरली। ठीक है, तो उनको ये करना है वो करना है कभी नहीं करेंगे, लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं। उनको मैं पर्सनली जाके जब मैं बोलती हूँ ना कि मैं भी BMC स्कूल से आई हूँ, तो मुझे हाँ. अच्छा लगता है बोलने कि मैं यहाँ होके भी आपके सामने हूँ। तो हाँ. आप सोचिए, अगर आप एक बार सोच ले तो कहाँ हो सकते, ये एक सबसे राइट. इम्पोर्टेंट है। और अगर राइट. एक एक ही चीज मेरे दिमाग में आती है, अगर आप एक बार सोचो कि आपको देश के लिए मेडल जीतना है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। Thank you. And one last question I have. What do you think of hi-fi? I mean, आपको क्या लगता है? I know you said it is very good and all that, but what was
very outstanding for you? ऐसा क्या लगा, अरे this is in BMC school, what was outstanding for you जब ये आप आए मैम थे आप उधर? हाई फाई फाउंडेशन जैसे मैंने वहां पे देखा, आप एक ऐसे बच्चों को एक ऐसा बेस देने की कोशिश कर रहे, उनकी लाइफ बन सकती है, उन फ्यूचर के लिए वो तैयार हो सकते हैं, ये सबसे राइट। बेस्ट है। हाँ। मैं जब बीएमसी से आई तो मैं जीरो थी मैम, क्योंकि किसी के करेक्ट। साथ शेयरिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई पूछता नहीं। और बीएमसी में आप भी जानते हो कि कितनी वैल्यू कितनी नहीं। राइट। अगर आप एक स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो और आप उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हो, इससे बड़ा कुछ नहीं है मैम। वो जो हाँ। उनका जो बच्चों का बचपन होता है ना, वो अच्छा राइट। नहीं होगा ना तो फ्यूचर में बहुत तकलीफ होती है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो या आपने जो बेस दिया है ना वो बहुत बेस्ट है। हमें उस टाइम पे अगर ये सब ऐसा सपोर्ट मिला होता ना, मैं डेफिनेटली बोलती मैं आज अच्छा मेडल या ओलंपिक पहुंच चुकी होती। So what do you think? How can we help you? We will definitely arrange maybe a game, or you can come and inspire the. I mean, both we can do. You can come one day, just inspire the girls. वो तो हो सकता है। गेम एक बार आपका टीम लेके आओ, आप खेलो हमारे इसमें। आप वो कोर्ट आपको कंफर्टेबल था जब भी आप आए थे? यस मैम। अवर कोर्ट्स आर प्रिटी गुड। आप हाँ, हमारे बच्चे किधर बाहर जाते हैं ना, इवन इन अ प्राइवेट स्कूल, इतना अच्छा कोर्ट नहीं रहता है उनका। बाहर जाके खेल के ऐसा विन करके ऐसा मुंह ऐसे छोड़े का, दे विल सल्क लाइक दिस, सैड होके आते हैं। इसे, अरे यू वन द मैच, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? नहीं मैम, उनका कोर्ट ठीक नहीं था, यू नो। ऐसा अपने कुछ नहीं कोर्ट है। अच्छा है। कोर्ट हाँ, का अपने। हमारा क्या इश्यूज होता है, मैम आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। हमारा कैसा है कि जो हमारी इंटरनेशनल विचेस है ना वो 6-6 लाख की है। हम अभी जहाँ हाँ। प्रैक्टिस कर रहे थे इतने सालों में वो इंडोर स्टेडियम है, तो हाँ। पैक है और व्हील्स खराब होने के चांस ही नहीं है। सबसे हाँ। बेस्ट आउटडोर में हम जितना सरफेस स्मूथ होगा हमारे लिए उतना अच्छा होगा। अच्छा। क्योंकि जो आगे की कैस्टल व्हील, जो छोटी व्हील्स होती है हमारी व्हीलचेस के, मैं आपको शेयर करूंगी पिक्चर्स। वो हाँ। व्हीलचेस अगर आउटडोर में हम खेलेंगे तो 6 महीने में ऑलमोस्ट खराब हो जाएगी, ऐसा है। अच्छा, तो तो हमें आपको इंडोर ज्यादातर ही बेस्ट है। प्रेफरेंस इंडोर स्टेडियम की जरूरत है। हाँ मैम। हाँ। हाँ, इंडोर हमारे पास स्टेडियम अभी में तक हमारा मतलब इंडोर हम बार नहीं है। बार मैम। हाँ मैम, हमारे लिए बनाओ जरूर मैम, लेकिन नहीं नहीं, जा अभी अभी कुछ सोच है, हम बताएंगे आपको थोड़ा दिन के बाद, बट अभी के लिए जरूर जरूर मैम। या इंडोर नहीं है अभी के लिए। दो हमने 22 कोर्ट्स बनाया है, अभी सब आउटडोर ही है। बट वेरी सोन वी विल बी डूइंग इंडोर कोर्ट्स ऑल्सो। सो एनीवे, यू लेट अस नो व्हाट वी कैन डू फॉर यू एंड हाउ वी कैन हेल्प यू। जरूर जरूर मैम, आपने पूछा उसके लिए थैंक यू। बस मैं तो ओके। अब सारी चीजें तो हमने शेयर कर ही दी है। गुड, आप गुड। कभी इंडिया आए तो जरूर मैं आपसे मिलना चाहूंगी। हाँ, हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल कम एंड आई विल डेफिनेटली, व्हेन आई एम देयर, आई विल मीट यू। ओके। बट यू हैड अ गुड टाइम लास्ट वीकेंड, बच्चे को देख के, हाई फाई बच्चे। सो अंडर 12 इज अ वेरी गुड टीम बॉयज। आपने बॉयज का गेम देखा आप? यस मैम, एक एक बच्चे ने मैं जब मैच देखी तो एक बच्चे ने पासिंग ऊपर करने के कहीं से पॉसिबल नहीं था, उसने नीचे से पास किया। और वो जो पास था ना औसम था, या आई या बहुत अच्छा था। और बच्चों का गेम काफी अच्छा है, वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे। आप सोचो ना, अगर 10 साल तक वो कंटिन्यू खेलते रहे करेक्ट, तो ओलंपिक करेक्ट। का मेडल कहीं नहीं गया मैम, यहीं पे है। Yeah. So, yeah, every child's journey in Haifa is about 10 years. वो लोग हमारे साथ 10 साल रहते हैं। सो इसलिए हम लोग उनको एक अच्छा से एक गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री बन सकता है, और गुड स्पोर्ट्स पर्सन, एंड दे कैन डू वेल इन लाइफ। उनका जर्नी अच्छा रहेगा जब भी दे दे कैन मूव ऑन फ्रॉम द कंडीशन दे आर टू अ better condition in 10 years. I mean, by the time they finish school, college, they will be in a better condition. So that is what we are, that is our mission. Every child should be बट like मैम that. एक क्वेश्चन था, मतलब आपने ऐसा क्यों, मतलब अभी बहुत लोग कैसा होता है, फाउंडेशन बनाते हैं फिर वो एकेडमी बना देते हैं, अलग अलग एक्सपेंसेस से ट्रेन करते हैं। आपने पर्टिकुलर बीएमसी ही बच्चे को चूज किया, हर एक उनके स्कूल्स में ग्राउंड बनाने के लिए सोचा, मतलब इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ा टारगेट है ये। Yeah. बॉम्बे में वैसे बीएमसी स्कूल कम नहीं है, बट अपने 22 बास्केटबॉल कोर्ट बनना ये बहुत बड़ा बात है। और स्पेशली उन बच्चों को जो खुद पे नहीं करके नहीं खेल सकते। Correct. So it's for us,
हमने ये क्यों किया? बिकॉज व्हेन हम पहले, जब भी हमारे बच्चे स्कूल में थे इधर यूएस में, बास्केटबॉल इज लाइक क्रिकेट। ओके, यूएस में क्रिकेट जैसा, इंडिया में क्रिकेट जैसा बास्केटबॉल इज वेरी पॉपुलर हियर। तो वो लोग खेलते थे, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे बच्चे तो दे प्लेड ओनली टिल हाई स्कूल। उसके बियॉन्ड कॉलेज में सिर्फ दोस्त लोग के साथ खेलते थे ऐसे। It's very difficult to get into MBA, and especially we are vegetarians and Indians and short, and वो सब नहीं हो Okay. सकता है. I mean, you have to be practical about it. But anyway, it was not, so they played and we used to like it. जब भी हम लोग वापस आया इंडिया, we said okay, अभी क्या करें, अभी कुछ करना पड़ेगा बच्चे लोग के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चे लोग के लिए। हम लोग सब लोग, बहुत लोग एजुकेशन एजुकेशन करके बहुत करते हैं, लाइक दे डू लॉट इन एजुकेशन। अरे ये फाउंडेशन करो, इसमें एजुकेशन हेल्प करो, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। But sports say education becomes easier because everyone likes sports, especially children. So, and we are also always fond of children, boys, girls, and girls, especially for me, I'm very fond of the girls. So, when we came back, we said, through sports, we should make their life better. Okay. So every we have 4,000 children high, सब लोग कभी इंडिया प्लेयर बन नहीं सकता है, हार्डली इफ यू गेट 4-5 प्लेयर्स हमारा ड्रीम बन जाएगा, but because it's so competitive, I mean it's very competitive, you know but all 4,000 children will have a life, better life, that is what Better. our mission is. Yeah, सब लोग क्या सोचते हैं? अच्छा, कोई हमारे पहले पहले जब भी हम लोग हाई फाई स्टार्ट किया था 2015 में, कोई पूछा था हमें, अरे आप लोग पागल है क्या, इतने खर्चे क्यों करते हैं बच्चे लोग के ऊपर? बिकॉज फ्री था, बच्चे लोग के लिए फ्री था, क्यों खर्चे करते हो? आप 200 ले लो, ट्रेन करो, इंडिया प्लेयर बनाओ। से दैट इज नॉट आवर मिशन। इंडिया प्लेयर अपने आप आ जाएगा, बट वी हैव टू इम्पैक्ट, मेक अ बेटर लाइफ फॉर 4,000 चिल्ड्रन और मोर। अभी आगे जाके देखेंगे कितने बढ़ेंगे करके, बट राइट नाउ इट इज 4,000। सो वी, तभी हम लोग, जब ये बात हुआ हमारे पास, तभी 700-800 चिल्ड्रन था। आप पागल है, 100 बच्चे ले लो, उनको इंडिया प्लेयर बनाओ बनाओ। So no, that is not our mission. Our mission is to train them really hard. They train almost 6 days in a week. You must have seen all these children. You tell them, आज आप मत आओ, घर पे बैठो। नहीं, सर 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 आप आएगा तो मैं आ जाएगा, सर 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 आ जाएगा। Or our coaches also sometimes they overwork. They love the children. हमारे coaches जो है, they love these children, and ये चिल्ड्रन के लिए ये कोचेस एक रोल मॉडल है, बिकॉज उनका बड़ा भाई जैसे ही लगते हैं ना, दे आर नॉट वेरी ओल्ड, आर कोचेस आर नॉट, you must have seen that day also, our coaches are not very old. And if you have seen under 12, some of our student coach, some of our children, आप सुना होगा, हमारे पास वो लोग 5th स्टैंडर्ड में हमारे पास आए थे, अभी सेकेंड ईयर कॉलेज में है वो, अभी पार्ट टाइम कोचेस है वो लोग। The यस मैम, reason, मैंने कल एक Yeah. मैच में देखा भी था परसों के, वो बहुत चिल्ला हाँ रहे थे। हाँ, He's talking हमें about हमारे Rakesh. कोच याद था कैसे थे। Rakesh, na? Was Yeah. it, is she talking about Rakesh? Yeah, Rakesh. So she even told me, so we Yeah. were sitting there and Rakesh was, motivating the kids and he was getting a little worked up. So she's like, please give him water. Yeah. You can see the heart they put into it. You genuinely how आपने देखा होगा उनका अंदर से कितना प्यार है, वो बच्चे लोग का अच्छा करना है, वही उनका गोल है, so that बहुत is बहुत that अच्छा है। is that is something that we love having our own. Our students are getting older now, जब भी हमारा अभी 9 years हो गया हाई फाई स्टार्ट करते, so but I know we will have very good coaches in the future. Our own children will become coaches also, some of them say no no, मेरे को ये नहीं करना है, मुझे बैंकिंग करना है, मुझे ये करना है, ठीक है, your path is different, so we help them,
sports, and we also help them with education. So every child who comes to Hi-Fi, we will support them till they finish graduation. That is our thing. After graduation, we'll help them. अगर job placement चाहिए, इधर चाहिए, उधर, उसको थोड़ा guide करेंगे. उसके बाद, so we always say a Hi-Fi child is a Hi-Fi child for life. So if you have always been in Hi-Fi, if you have been in Hi-Fi, Thanks, sir. if you are 40 years old, you can come back and play for the club. I'm just saying, you know. Hi-Fi club के लिए आप play कर सकते हो. आप कभी भी, you are always a Hi-Fi child for us, you know, like that. So that is our thing. Anyway, taken a lot of your time. No issues, ma'am. Okay. आपसे मिली, आपसे बात हुआ, आपका हमारा सेशन में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप वहां से मेरे सेशन सुनने के लिए बैठे, वही बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं, नहीं, आपका, you have done such a amazing, your life has been such an amazing journey. All of us have to learn a lot from you. I mean, how, Yes. I mean, you know, it has been amazing. Yeah. Thank you. And ask your niece to come and play with our children in ज्यादा ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा ना आपको, जोगेश्वरी, गोरेगांव दूर नहीं पड़ेगा ना नजदीक आपको, होगा मैम। अभी लेकिन उसके एग्जाम्स के बाद मैं उसे थोड़ा थोड़ा बीच में हाँ, लेकर हमारा आऊंगी, समर कैंप, कोऑर्डिनेट हाँ, करके इनके साथ। कीप इन टच विद अस, सुनील, सेरा, आप इनके साथ टच में रहिए. जरूर मैम, मैं या कोशिश करूंगा हाईफाई सर के साथ हमेशा मतलब फाउंडेशन से जुड़ी रहूं, और या आपके साथ जो कर एंड सकूं बच्चों के लिए मुझे खुशी होगी। समर कैंप के टाइम we will have a session with you, with our girls and our children, boys also. I श्योर mean, मैम, boys can also get inspired by you. We'll have a session and श्योर we'll मैम। see how we go from there. Okay, so One more thing I'd यस like to मैम। share. yeah. So, the under 12 matches were going on, and she was so impressed. Geeta ma'am was so impressed, बच्चे खेल रहे हैं, and the way they were playing. So she was telling her niece, "Come on, get up, stand, see how they are playing, and see, just observe them." So yeah, that was also one thing I wanted to share. Believe it or not, Geeta, myself and my husband, we started Hi-Fi, but the energy of these coaches and these children, हम लोग ऐसे नहीं लगते, हम लोग बहुत, हमारा बहुत एज हो गया. नहीं, एज नहीं हुआ, हम लोग भी 20 साल 25 साल के हैं. दैट इज हाउ वी फील, सो एनर्जाइज्ड वी आर because of these children, and the success of these children is what energizes us. Yeah, thank you for us spending good amount of time with us today. I'm so थैंक यू happy मैम। having. So with that, we come to the end of our conversation. I want to extend my heartfelt gratitude to our incredible guests, Geeta Chauhan ma'am, Usha ma'am, for sharing their time, wisdom, and inspiring stories with us. As I said, Geeta ma'am is always welcome to Hi-Fi anytime. She can bring her यस team. She can come and give some motivation speeches for our children. That's all, that we will arrange यस during मैम, summer. एनी टाइम। Thank you both for your inspiring words. And to our audience, I want to thank you for tuning in. Your support is what drives us to bring these meaningful conversations. Do follow Hi-Fi's social media handles on Instagram, Facebook, and YouTube. With that being said, let's continue spreading positivity and empowerment. And until next time, take care, stay inspired, and keep pursuing your passions. Thank you. Thank you, Sarah. Bye. थैंक यू।